الله الرحمن الرحيم حامدا ومصلين ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سامعین، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہیں محتاجی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتا ہے بخشش اور فضل کا، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جس کو چاہے حکمت دی گئی تو اسے بہت بھلائی مل گئی، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل والے۔ اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو تو بے شک اللہ اسے جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ رکھو اور فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، اور اس سے تمہیں کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اس سے تمہارے کچھ گناہ گھٹیں گے، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ انہیں سیدھی راہ پر چلانا آپ کے ذمہ لازم نہیں، لیکن اللہ سیدھی راہ پر چلاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو اچھی چیز خرچ کرو تو اس میں تمہارا ہی نفع ہے، اور تمہیں خرچ نہیں کرنا چاہیے مگر اللہ کی رضامندی کے لیے، اور تم جو مال خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں پورا ملے گا، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ خیرات ان فقیروں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روکے گئے، زمین میں چل نہیں سکتے، جاہل انہیں سوال نہ کرنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے۔ آپ ان کو ان کی صورت سے پہچان لیں گے، لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو مال خرچ کرو تو بے شک اللہ اسے جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور علانیہ، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ سامعین، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے وہی صدقہ و خیرات کے متعلق تفسیر فرمائی ہے۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ شیطان وہ تمہیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تمہارا مال کیا ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، تمہارا مال کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، تم کیا ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، تم غریب ہو جاؤ گے، مسکین ہو جاؤ گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ بے حیائی کے کاموں کے اندر لگے رہو۔ اب شیطان ایک طرف سے تو کیا یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے بھلائی کے کام کے اندر اور نیکی کے کام کے اندر اگر تم نے خرچ کیا تو ایسی صورت کے اندر تمہارا مال کیا ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے بے حیائی کے کاموں کے اندر مال خرچ کیا تو وہاں وہ شیطان نہ ڈراتا ہے نہ دھمکاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد رکھو اللہ تمہارے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر تم نے مال اس کی راہ کے اندر خرچ کیا تو وہ تمہارے ساتھ فضل فرمائے گا اور تمہارے ساتھ بخشش فرمائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اگر کوئی بندہ صدقہ کرے اور صدقہ کرنے کی وجہ سے مال کم ہو جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم جس نے صدقہ کیا اور صدقہ کی وجہ سے اگر اس کا مال کیا ہو جائے، کم ہو جائے، تو وہ قیامت کے دن مجھ سے لے لینا۔ تو اب اتنی بڑی روایت ہے اور اتنا بڑا حضور علیہ السلام وعدہ دے رہے ہیں، تو اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مال کو رائے خدا کے اندر خرچ کرنے سے وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر
दूसरी आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो हिकमत अता फरमाए, और जिसको हिकमत अता फरमा दी गई तो ये बहुत बड़ी भलाई अता फरमाई गई। अब हिकमत से क्या मुराद है, इसके अंदर मुफस्सिरीन किराम ने इरशाद फरमाया कि हिकमत से मुराद है कुरान की फहम, कुरान की फहम और फिरासत, कुरान के अंदर गौर फिक्र करने की जो कुव्वत है, वो कुव्वत अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी को अता फरमा दे। यानी कि इसके जो मुहकम है, इसके जो मुतशाबे हैं, इसके जो मनसूख है, इसके जो नासिख हैं, और इसके अंदर जो पेचीदगियां हैं, वो पेचीदगियां अगर बंदा क्या हो जाए, उसको मालूम हो जाए, तो गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको अता फरमाई, ये हिकमत अता फरमाई, और ये हिकमत क्या है, बहुत बड़ी भलाई गोया के। और एक और रिवायत के अंदर आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हिकमत जो है वो मुसलमान का, वो मोमिन का गुमशुदा चीज है, जिसको वो पा ले, जहां कहीं वो जाता है, अगर उसको मिल जाए तो वो उसको क्या कर लेता है, हासिल कर लेता है। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा अनफक्तुम मिन नफक़तिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन, फरमाया कि जो कुछ तुम खर्च करते हो या अल्लाह के लिए नजर मांगते हो, तो वो अल्लाह उसको जानता है, और अल्लाह उसी के ऊपर क्या, उसके मुताबिक क्या तुम्हें अजर और सवाब अता फरमाता है। ये याद रखिए कि नजर का माना यह है कि बंदा किसी काम को हासिल करने की खातिर अल्लाह के लिए कोई इबादत मुकर्रर कर ले, इसको क्या कहते हैं, नजर कहते हैं। फिर नजर की जो है ना दो किस्में हैं, एक है नजर मुतलक और एक है नजर मुअय्यन। अब नजर मुतलक क्या होती है, अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं बीमारी से शिफायाब हो गया तो मैं एक रोजा रखूंगा, और नजर मुअय्यन ये है कि वो बंदा ये कहे कि अगर मैं इस बीमारी से शिफायाब हो जाऊं तो मैं क्या रखूंगा, रोजा रखूंगा, इसको क्या कहते हैं, नजर मुअय्यन। लेकिन और ये भी याद रखिए कि नजर जो है ये सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला के लिए, किसी और के लिए ये जायज नहीं। आजकल जो जाहिल हजरात जो है ना, वो बुजुर्गों के मजार के ऊपर जाते हैं या मस्जिद के अंदर आकर दीवे बालते हैं, दीवे जलाते हैं, यानी कि ये जो दिए जलाते हैं, और वो मन्नत मानते हैं कि अगर मैं मेरी बीमारी क्या हो जाए, तंदुरुस्ती के अंदर तब्दील हो जाए, तो मैं इस बुजुर्ग के ऊपर आकर जो है ना 100 दिए जलाऊंगा। अब ये इस तरह की नजर मानना, ये नजर खालिस क्या है, कुफरिया तौर पर है। इसलिए अलामा हस्कफी ने और अलामा शामी रहमतुल्लाह ताला ने किताब शामी के अंदर इस बात की तस्रीह फरमाई कि ये नजर जायज नहीं है। आगे फरमाया इन तुब्दु सदकाति फनिअमाही व इन तुख्फुहा व तुअतुहा अल फुकरा फहुवा खैरुल लकुम, फरमाया कि अगर तुम एलानिया तौर पर सदका व खैरात करो तो ये भी क्या है, बेहतर, और अगर तुम छुपा कर दो तो ये भी क्या है, तुम्हारे लिए बेहतर है, और तुम्हारे गुनाहों इससे क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। अब ये याद रखिए कि जो सदका वाजिबा हो, यानी कि जो ज़कात की सूरत के अंदर हो या उशर की सूरत के अंदर हो, उसको ज़ाहिरी तौर पर अदा करना, उसको ज़ाहिरी तौर पर देना, ये क्या है, लाजिम है, वाजिब है, ताकि लोगों को क्या हो जाए, तरगीब हो जाए। और अगर सदका वाजिबा ना हो, सदका मुस्तहब्बा हो, मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा सदका व खैरात कर रहा हो, तो ऐसी सूरत के अंदर उसको छुपा कर देना क्या है, आला और अफजल है। इसलिए रिवायत के अंदर आता है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 7 अशखास को अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन अपने साये के अंदर क्या करेगा, जगह अता फरमाएगा। अब वो 7 अशखास में से एक शख्स वो होगा कि जिसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया अल्लाह की राह के अंदर, उसके बाएं हाथ को भी क्या है, मालूम ना हो, यानी कि इतना छुपा कर वो दे कि उसके बाएं हाथ को खुद को भी क्या मालूम ना हो, तो वो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के साये के अंदर क्या हो, वो जगह हासिल कर पाएगा। आगे फरमाया लैसा अलैका हुदाहुम, ये आयत उस वक्त नाजिल हुई कि जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले ज़िम्मा पर, यानी कि काफिरों के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई हुक्म अभी तक नाजिल नहीं हुआ था, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह क्या काफिरों को हम क्या है सदकात दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मना फरमाया कि नहीं दे सकते हो। तो अब ये आयत नाज़िल हुई लैसा अलैका हुदाहुम वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, हुजूर आपके ऊपर ये लाजिम नहीं है कि आप किसी को राह रास्त पर लेकर आ जाएं, ये तो हमारी ड्यूटी है, हम क्या करेंगे किसी को राह रास्त पर लाना, यानी ये हमारे जिम्मे है, हम किसी को क्या करेंगे, हिदायत अता फरमाएंगे। इसी फरमा वमा तुनफिकू मिन खैरिन फलिअनफुसिकुम, तुम जो कुछ खर्च करो तो वो तुम्हारे लिए, यानी कि तुम अगर अहले जिम्मा को देना चाहो, काफिरों को देना चाहो तो वो तुम्हारे लिए क्या है, बेहतर। यहाँ पर ये याद रखिए कि अहले जिम्मा के ऊपर सदकाते नाफिला वो देना तो जायज, सदकाते वाजिबा देना जायज नहीं। और दूसरा जो काफिर हरबी हो उसको भी कोई भी सदका, चाहे वो सदकाते नाफिला हो चाहे सदकाते वाजिबा हो, कुछ भी देना जायज नहीं है। आगे फरमाया लिल फुकराइल लज़ीना उहसिरू फी सबीलिल्लाहि ला यस्ततीऊना दरबा, यह आयत असहाबे सुफ़ा के मुतालिक नाजिल हुई है। असहाबे सुफ़ा वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो मिस्कीन और फकीर सहाबा इकराम थे,
जिन की तादाद 70 के लगभग थी, वो हर वक्त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर रहते थे और सरकार अलैहिस्सलाम के पास इल्म हासिल करते रहते थे। तो वो अपने आप को इस राह के अंदर उन्होंने मशगूल कर दिया था कि हम हर वक्त क्या करेंगे, इल्म हासिल करते रहेंगे। अब उनके लिए ये इरशाद फरमाया कि ये फुकरा वो हैं जो अल्लाह की राह में हैं, जो इल्म हासिल करने के अंदर हैं और वो आगे पीछे नहीं जा रहे और वो लोगों से मांगते भी नहीं है फकीर, लेकिन है फकीर है, मिस्कीन है, लेकिन मांगते नहीं है, सवाल नहीं करते हैं। तो फरमाया कि अगर तुम उनको देखे तो उनकी अलामात की वजह से क्या पहचान सकता है, तो अब ऐसे अशखास पर इनको देना क्या ये बेहतर है। आजकल हमारे जमाने के अंदर भी, आजकल हमारे इन इलाकों के अंदर भी कुछ ऐसे सफेद पोश हजरात होते हैं जो इतने गरीब और यतीम और मिस्कीन होते हैं कि उनके पास होता तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दस्त सवाल दराज नहीं करते, किसी से मांगते नहीं है। अब हमें ये चाहिए कि हम उनको तलाश करके उनको देखें, उनको ढूंढ कर उन तक क्या है माल जो है वो पहुंचाया जाए ताकि उनके घर का जो चूल्हा है वो जल सके। दूसरी बात यहां पर मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमने पीछे भी ये कहा था कि मस्जिद के अंदर जो लोग मांगते हैं, तो अब मस्जिद के अंदर अगर कोई बंदा सवाल करता है तो कुछ हजरात जो है ना उनको ऊपर डांट टिपट कर देते हैं कि ये जायज नहीं है, ये मना है। ये याद रखिए कि अगर कोई बंदा मस्जिद के अंदर खड़ा होकर सवाल करे, अगर वो नमाजियों की गर्दनें फलांग रहा हो, तो ऐसी सूरत के अंदर फुकहा ने ये तस्रीह की कि ये मकरूह है इसको अता करना भी और इसका मांगना भी। हाँ, अगर ये मस्जिद के अंदर एक जगह के अंदर खड़ा होकर सवाल करता है, मस्जिद के अंदर नमाजियों की गर्दनें फलांगता नहीं है, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर इसको देना भी मकरूह नहीं है और इसका सवाल करना भी मकरूह नहीं। सवाल की वही हद है कि अगर कोई आदमी ऐसा हो कि जिसके पास एक दिन का और एक रात का क्या हो खर्च उसके पास हो, वो एक दिन क्या है गुजर बसर कर सकता हो, तो उसके लिए सवाल करना जायज नहीं। हाँ, अगर उसके पास इतनी सहूलत नहीं है, कुव्वत नहीं कि वो एक दिन का माल बर्दाश्त नहीं कर सकता, कुव्वत नहीं उसके पास खाने पीने की, तो ऐसी सूरत के अंदर उसका सवाल करना क्या है जायज। फरमाया अल्लज़ीना युनफिकून अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहार, जो दिन के अंदर और रात के अंदर और एलानिया तौर पर और छुपा कर वो क्या करते हैं, सदका अता फरमाते हैं, तो उनका अजर क्या रब के पास है। ये रिवायत है, इसके अंदर दो शान नुज़ूल है। एक शान नुज़ूल ये कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये नाजिल हुई, और एक रिवायत है कि ये हजरत मौला अली पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में हुई। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास 40,000 दीनार थे। 10,000 दीनार आपने रात को, 10,000 दीनार आपने दिन को, और 10,000 दीनार पोशीदा तौर पर और 10,000 दीनार आपने जाहिरी तौर पर अल्लाह की राह के अंदर क्या कर दी, खर्च कर दी। और एक रिवायत हजरत मौला अली पाक के बारे में कि आपके पास 4 दराहिम थे, एक दिरहम आपने दिन को, एक रात को, एक जाहिरी तौर पर, एक छुपा कर क्या करिया अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर खर्च कर दिया, सिक्का कर दिया। तो रब तआला ने फरमाया कि ये वो लोग हैं कि जिनका अजर क्या है, उनके रब के पास होगा। तो ये मजमून तकरीबन 10-12 आयात के अंदर सदकात के मुतालिक आया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर क्या करना चाहिए, सदका करना चाहिए, खैरात करनी चाहिए। हक ताला से दुआ है कि हक ताला ने ये तौफीक अता फरमाए कि हम उसके रास्ते के अंदर सदका व खैरात कर सकें। वाह।